together should be called as protoplasm. Okay, two things. There are protoplasm and protoplast. What is the difference between the two? Protoplasm and protoplast. Protoplasm, I told, cytoplasm plus nucleus. What is protoplast? Hello? Protoplasm without cell wall. Okay. Cell devoid of cell wall. ठीक है? And if you know about tissue culture, it is if you are studying the course of plant breeding, then this protoplast is used in soma clonal variation. Okay. Now, what is the difference? We'll be talking about only the plant cell. There are few basic differences between plant cell and animal cell. Can anybody, आप लोग screen share कर सकते हो? Can you draw the picture of plant cell? Plant cell का structure सब लोग draw कर सकते हो? हेलो, Yes, ma'am. सब लोग कर लोगे? हेलो, अच्छा, first tell me the difference between plant and animal cell. So in plant cell, large vacuole are present, and in animal Okay. cells, central are present. If you're talking about vacuole, then only tell vacuole, not the centriole. So vacuole, it is present in plant cell. Not present in animal cell, and central is present in animal cell, not present in plant cell. Okay. Plastic, ma'am. Plastids. These are present in Plant And cell, plant cell. plant cell and absent in. animal Animal cell. cell. Okay. Another difference. Ma'am, cell wall. Cilia Cell wall. present in Cell wall is present in Plant cell. absent in animal. Ma'am, Somebody middle else- lamella. No, somebody else was telling something else. मैम Hello? स्टोरेज मटेरियल, मैम स्टोरेज मटेरियल प्लांट में स्टार्च होता है और एनिमल में ग्लाइकोजन होता है. नहीं, somebody something else बता रहा था. नहीं, वो स्ट्रक्चर में, स्टोरेज मटेरियल की बात नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन हो गया. mode ग्लाइकोजन. of nutrition. Pardon? Mode of nutrition. Animals में heterotrophic, plant में autotrophic. No, only about the cell. Middle lamella, ma'am. नहीं, मिडिल लेमेला. हाँ, मैम एनिमल सेल में माइक्रोविलाई होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है. हाँ, ठीक है. और ये हम मिडिल लेमेला, सुनो एक मिनट, 1 minute. मिडिल लेमेला समथिंग somebody was telling. तो ये मिडिल लेमेला इट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. हम लोग देखेंगे. सेल वॉल कंप्राइजेज ऑफ प्राइमरी सेल, सेकेंड इज प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडिल लेमेला. ठीक है. और सेल वॉल यू हैव ऑलरेडी सेड दैट इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल. तो मिडिल लेमेला तो यहाँ पर कोई पार्ट ही नहीं आ रहा है. इसका तो कोई मैम बात ही नहीं. पेरेक्सियोसोम. मैम प्लांट सेल में पेरेक्सियोसोम होता है, एनिमल सेल में नहीं. ठीक है. नहीं, मेजर डिफरेंसेस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. ठीक है ना. ये है मेजर डिफरेंसेस. Yes, ठीक ma'am. है. एंड सेंट्रोसोम्स आल्सो, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स एज वेल एज सेंट्रोसोम्स बोथ आर present in animal cell as well as absent in plant cells. ये major differences हैं.
ठीक है, और कोई डिफरेंसेस मुझे नहीं पता। तो प्लांट सेल, इसका शेप कैसा होता है? विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट प्लांट सेल, नॉट एनिमल सेल को भूल जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल का शेप कैसा होता है? Generally we draw polygonal shape, isn't it? Just now I had said that honeycomb like structures. तो generally polygonal होता है, rectangular, it can be sometimes elongated, spherical, oval. Okay. What is the size? Size of a cell? Hello? Hello? 10 to 30 micrometer. कितना? मैम 10 to 100 micrometer. 10 to 10 30. micrometer. 10 to Okay. 100 micrometer. 10 to 100 micrometer. What is the smallest cell? Which is the smallest cell? Sorry. Mycoplasma. Mycoplasma. It is 1,000th of a millimeter. Okay, and the longest in plant cells I am talking about. Longest cell? एसिटाबुलेरिया. क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। हेलो? मैम एसिटाबुलेरिया. Acetabullaria. Leaf No, cell of Acetabullaria. no. फ्लैक्स का नाम सुने हो? कॉटन, फ्लैक्स, Yes, ma'am. fibrous cells of flax. It's very long, 20 to 550 millimeter. इसे ड्यूरेशन मैम निकलते हैं फाइबर्स फॉर मैम मेकिंग जूट क्रैकेड नहीं बैग। हो मैम क्रैकेड नहीं हो सकता है. नो, ये है इसका ना जूट बैग जो बनता है। ठीक है, किस में सबसे लंबा सेल होता है? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो अगर हम प्लांट सेल को देखेंगे तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। वन इज द प्रोटोप्लाज्म एंड द अदर इज सेल वॉल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में जो है मैक्सिमम चीज जो होते हैं लिविंग होते हैं। सेल वॉल इट इज 100% नॉन लिविंग। ओके, नाउ दिस प्रोटोप्लाज्म it contains or plasma membrane. I'm writing simply short membrane, you write the complete thing. Cytoplasm, which is also known as cytosol. Vacuole. And nucleus. ठीक है,
Yes, ma'am. तो सबसे बाहर सेल वॉल होता है, ठीक है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, उसमें जेली लाइक सब्सटेंसेस जो साइटोप्लाज्म होगा, और इसी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो vacuole, what is the function of this vacuole? Hello, सेल what is the function? प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मैम। क्या प्रोवाइड करता है? उसमें ये रेगुलेशन इट में इज मैम प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये भी आपने बताया है ना? मैम it controls cell volume and cell turgor, ma'am. Okay, मैम cell volume and cell ऑस्मोटिक turgor. Turgidity is the main Maintain function. water balance, ma'am. ऑस्मोटिक हाँ, वही हो गया, वाटर बैलेंस ही टर्जिडिटी हो गया, ठीक है। Ma'am, it तो also मेन helps in excretion. इट आल्सो हेल्प्स इन Excretion, ma'am. Contractile vacuoles. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। यहाँ पर मेन फंक्शन इज maintain the water balance to give turgidity to the cells. Main function is this, ठीक है। जो यंग डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल जो होता है कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, ठीक है। नाउ दिस साइटोप्लाज्म, this membrane, as you know, it is called semi-permeable membrane or the plasma membrane or the cell membrane, because it allows certain substances to pass through, ठीक है, इसलिए सेमी परमिएबल, हम लोग सेमी परमिएबल कहते हैं। It allows only certain substances to pass through, so it will be better to call partially permeable membrane. Okay, now this cytoplasm, it contains many cell organelles Can you name few organelles present in plant cell? The most important one, Golgi body, the most important, mitochondria, Golgi body, mitochondria, endoplasmic reticulum, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. Golgi bodies तो बोल दिया। प्लास्टिड्स कहो तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, स्फेरोसोम्स, ठीक है। तो मेजर वंस आर plastids, mitochondria, ribosomes, Golgi bodies. These are the major ones. ठीक है। yes, so these cytoplasm contain many different types of cell organelles. Apart from this, certain ergastic substances. What are ergastic substances? These can be reserved. waste product, ma'am. It can be waste products or reserve materials. Not only waste products, these waste products, they are also known as secondary metabolites. Okay, these secondary metabolites, of course, they are produced, synthesized in the plants, but they do not have any specific physiological role. These secondary metabolites, they do not have any specific physiological role, okay, but they are synthesized in the plants. But there is an exception to it. Although it is synthesized in the plant, I said कि they do not have any physiological role, but there is
a secondary metabolite which has some physiological role. Can you name which one is that? Secondary metabolites का कुछ idea है? Yes, ma'am. नेम बोलना मैम, जैसे लेमन ग्रास वगैरह. नहीं, लेमन ग्रास में वो क्या चीज प्रोड्यूस करता है? जैसे फिनॉल्स हुआ, एल्कलॉइड्स हुआ, पिगमेंट हो गया, टैनिन, टॉक्स मैम, ड्रग्स हो गया, टैनिन्स पिगमेंट हुआ, हो ये गया. सब है, ठीक है. और जैसे कि आपने एक हार्मोन का नाम सुना होगा, ABA. Yes, ठीक है. ma'am. Abscisic acid. It is a secondary metabolite produced in some plants as function just like it functions as a waste product. ठीक है. But it has a specific function. It has some specific physiological role. Okay. So it's an important hormone as well as secondary metabolite. Apart from these secondary metabolites or waste products which you are calling, some reserve materials are also present as ergastic substances. ठीक है. और ये रिजर्व मटेरियल्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स. ओके. Yes. Then cell organelles. Coming to cell organelles का structure and function. How will you define cell organelle? Hello. How will you define cell organelle? Membrane bound structures present in the cell. Okay, membrane bound structures present in the cell. Anything else? Doing a specific function. With some specific function. Then only it will be complete. ठीक है. Which help in normal function. Which helps in some normal specific function. A specific function. जो कोई भी एक take any organelle. It has a specific function. So for example plastids. ठीक है. या माइटोकॉन्ड्रिया सबसे कॉमन है. ठीक है. आप लोग जानते हो इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो दूसरा ऑर्गेनेल नहीं कर पाएगा. So this organelle, it is a subcellular structure which has some specific function in the cell. Okay. And very much like an organ. जैसे कि बॉडी में कोई ऑर्गन है, जैसे लीफ है, लीफ का कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वैसे ही ये ऑर्गेनेल जो होता है ना, उसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा. ठीक है. will be talking only about the plant cells. Don't confuse with the animal cells. तो ऑर्गन किसी दूसरे ह्यूमंस एनिमल्स का मत ले लेना, सिर्फ प्लांट की बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाई लीफ. ठीक है. इट्स एन ऑर्गन. तो इसका फंक्शन क्या है? स्पेसिफिक है. वैसे ही ऑर्गेनेल का जो फंक्शन है स्पेसिफिक है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ऑर्गेनेल ले लें? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर स्क्रीन शेयर कोई कर सकता है क्या? हेलो हेलो. कोई कुछ बोलता ही Yes, नहीं. तुम लोग स्क्रीन शेयर कर पाओगे क्या? अच्छा. इसका स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करो. बोलो उसके पार्ट्स को. कुछ नहीं बोलता है कोई. किसने डिस्कवर किया? Coliker. कॉलिकर.
Yes, ma'am. पक्का? रॉबर्ट आल्टमैन क्या किया? हेलो, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Coming to its structure. So its shape is spherical, oval, just like the cell. कोई भी अच्छा मेम्ब्रेन का पहले कर देते, चलो ठीक है, अब स्टार्ट कर दिए हैं। मेम्ब्रेन सबसे पहले हम लोग मेम्ब्रेन कर ले क्या? नहीं, चलो Yes, ma'am. अब मेम्ब्रेन करना चाहिए था, गलत हो गया। चलो, ओवल स्ट्रक्चर होता है, इस पे थोड़ा सा ड्रॉ करना डिफिकल्ट है। बहुत अच्छा ड्रॉ, इससे फिगर ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ये है when cut transversely. Okay, Yes, ma'am. तो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, जहां मैं ड्रॉ कर रही हूं दोबारा। ओके, Yes, ma'am. and side is the inner membrane. Okay, it has the inner membrane has some enfoldings like this one which I'm drawing just now, this one. This is the crista, प्लूरल इसका क्रिस्टे हो जाएगा, ठीक है। And the space inside the crista, this space जो I am filling it, this is Matrix. intracrystal space, the Intermembranous. space inside the crista. Okay, Yes, ma'am. then space between this outer membrane and this inner membrane, this space जिसे मैंने अभी डार्क किया, that is perimitochondrial space. Okay, then this crista, everywhere around on the crista there are some oxysomes, this type of structures. The circle ones, this circle one, it is known as F1 particles or headpiece, and this parallel, this portion, it is F0 particles or base piece. Okay, then this dot what I'm telling, drawing, just like cytoplasm, this aqueous ground phase, this is matrix. Crista and matrix are important two things here. Okay,
Then it also has its circular DNA. Okay. So these, because of the presence of this circular DNA, it is a self-replicating organism. ठीक है? Okay. It also contains certain ribosomes. Ribosome is responsible for protein synthesis in plant. Protein protein synthesis. synthesis. ठीक है? ओके, तो चलो इसका फंक्शन पहले तो आई टोल्ड इट्स शेप इज स्फेरिकल, ओवल और रॉड लाइक. साइज 0.5 to 1 माइक्रो, लिख लो 0.5 to 1 micrometer diameter, and if it is rod like then 1 to 3 micrometer in the length. And function of mitochondria, provide energy to the cell. respiration तो सबने पढ़ा है, provides energy to the cell. So this oxysomes which I told, इसको respiratory chain भी कहते हैं या phosphorylating complexes. ठीक है, ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन ये सब पे रहता है, सारे पृष्ठ पे होगा. ठीक है, ये phosphorylating complexes है. This is responsible for the formation of ATP. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे आप लोग इन रेस्पिरेशन. तो फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ, सिंथेसिस ऑफ ATP. व्हाट इज? तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये है इनर मेम्ब्रेन पे होता है जो, ठीक है ना. और क्या फंक्शन है? एक फंक्शन हेलो, रेस्पिरेशन पढ़े हो ना? Yes, ma'am. हल्का तो पढ़े हो बेसिक चीज. हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. शुरू में तो अच्छा Yes, रिस्पॉन्स आता है, तो 10 मिनट में सब सो जाते हो. बताओ. Yes, ma'am. पढ़ा है. स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? स्टार्च से सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करेगा. वो सिंपल शुगर, बोलो. Yes, ma'am. मैम हेक्सोकाइनेज आएगा तो ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा. फिर उसके बाद सर आइसोमरेज होगा तो डिटेल में फ्रुक्टोज बताओ. देखो,
मुझे उतना डिटेल चाहिए नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में पूछ रही हूँ। सिंपल शुगर बनेगा, ठीक है, वो पायरुवेट बनाएगा, उसके बाद क्या होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? मेसोफिल सेल में। मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। ये सब स्पेस है जो कि एक्वेस ग्राउंड फेज मैट्रिक्स है, वहां पे क्या होता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो मतलब कि इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं which is responsible for breakdown of food, ठीक है, during respiration। तो मेन फंक्शन एटीपी सिंथेसिस, ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड certain amount of protein synthesis, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं 3 तरह के होते हैं, कौन कौन? Chloroplast, Chloroplast, हाँ, chromoplast, leucoplast. chromoplast, leucoplast. ठीक है, ये बेसिकली 3 है, कहीं और देखोगे कि और भी चौथा भी है, तो हम लोग यही 3 पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन था, ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग ल्यूकोप्लास्ट देख लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लोरोप्लास्ट है, बट ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होता है, यहाँ नहीं है। और इसके जो बड़े वाले ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं उसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, and it stores starch, and these amyloplasts, they are present in roots and act as gravity sensors, ठीक है। These amyloplasts, they are present in the roots, in the root cap, and act as gravity sensors।
हेलो Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. हाँ डिस्कनेक्ट हुआ, क्या मैं बोल रही थी? मैम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बोल रहे थे आप. क्लास में बताया मैंने, ये रूट्स में प्रेजेंट होता है, दैट हेल्प्स इन ग्रेविट्रोपिज्म। यहाँ तक हो गया था? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ग्रेविट्रोपिज्म में हेल्प करता है। उसके अलावा ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, दिस इज इट मे कन्वर्ट टू क्लोरोप्लास्ट व्हेन exposed to sunlight। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, इट कैन कन्वर्ट टू क्लोरोप्लास्ट व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। एक एग्जांपल बता सकते हो आप इसका? पोटैटो ट्यूबर्स, उसमें जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च Starch. के फॉर्म में, ठीक है। तो माइलोप्लास्ट वहां बहुत होते हैं। तो ये जो पोटैटो ट्यूबर्स जनरली जो है, आप लोग छिलका देखोगे उसका ब्राउनिश कलर होता है। कभी हरे रंग का आलू देखे हो? Yes, ma'am. हाँ, कब देखे हो? क्यों हो जाता है वो ग्रीन? ये तो नहीं पता क्यों है, तो लेकिन जब वो न्यू होता है ना मैम, तो हाँ। वो ग्रीन. हाँ, न्यू होता है तभी ग्रीन होता है। वजह क्या होता है कि वो जब हार्वेस्ट करने के बाद अगर धूप में पड़ गया, ठीक है। कभी कभी जनरली पोटैटो इट्स एन अंडरग्राउंड वेजिटेबल, सॉइल के नीचे रहता है। इन केस अगर फील्ड प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ, किसी भी कारण से वो आलू मिट्टी के ऊपर आ जाएगा, तो वो ग्रीन कलर होता है, ठीक है। या हार्वेस्टिंग के Yes, ma'am. बाद आलू जब नया रहता है तो उसको धूप में रख देना। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप लोग, अब तो आ रहा है सीजन, इसी सेमेस्टर में देख सकते हो। अक्टूबर से नया आलू आने लगता है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। नया आलू आएगा मार्केट से, उसको धूप में रख देना, देखना वो कैसे ग्रीन होता है। और फील्ड में तो खासकर तुरंत ही ग्रीन हो जाएगा। फील्ड में मींस व्हेन स्टिल इन प्लांट बिफोर हार्वेस्टिंग ओनली, ठीक है। रीजन है कि उसमें स्टार्च जो मटेरियल ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो दैट कन्वर्ट्स टू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्यों हो जाता है, यही रीजन है। द अदर प्लास्टेज इज क्रोमोप्लास्ट। मैम स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट्स टू क्लोरोप्लास्ट। यस, स्टार्च में कन्वर्ट होता है। ओके। मैम टॉक्सिन का भी सिंथेसिस होता है ना? यस, टॉक्सिन वो ग्रीन वाला होता है ना, उसमें सोलेनिन होता है। इट्स वेरी टॉक्सिक, इट शुड नॉट कंज्यूम, ठीक है। हरा आलू कभी मत खाना, गलती से भी नहीं। लोग बना लेते हैं ना हरा वाला आलू, Yes, ma'am. हाँ, कभी नहीं। घर में अगर मम्मी लोग बनाती हैं तो मना कर देना आगे से। स्लो पॉइजन, धीरे धीरे आप लोग को पता भी नहीं चलता होगा, ठीक है। वेरी माइनर अमाउंट में कभी कभी वो हरा आलू होता है, ऐसे फार्मर्स बेचते नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेलिंग किसी तरह से अगर वो धूप में एक्सपोज हो जाता है सनलाइट में, तब वो हरा आलू होता है। तो धूप में उन लोग को पता नहीं चलता, नहीं तो फार्मर्स है उसको सेल ही नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो है कलर्ड प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है। और ये Ma'am. कलर्ड प्लास्टिक्स बहुत सारे देखे हो ना, तो दो मैम आपकी आवाज कट रही पिगमेंट है. होता है इसमें, क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड। हेलो, थोड़ी सिग्नल कमजोर हो गई है।
carotenoids and anthocyanins. Carotenoids and anthocyanins. ये एंथोसाइनिन जो होता है ना, इसकी वजह से पर्पल कलर होता है। पर्पल कलर देखियो, आप फ्रूट्स लो या फ्लावर्स लो, कितना मल्टी कलर ब्रिलियंट कलर्स होते हैं, इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, एंथोसाइनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्पल कलर। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स दो तरह के होते हैं, कैरोटीन्स, xanthophylls. Yet another is lycopene. आप लोग नोट कर लो, मैं नहीं लिख रही हूं। ठीक है, कैरोटीन्स, xanthophylls, lycopenes. कैरोटीन किस में आता है? कैरोटीन का रंग क्या होता है, कलर क्या होता है? आप लोग बहुत खाते होगे कैरोटीन। कैरोटीन, ठीक है, ऑरेंज होता है। ठीक है, नॉट रेड। रेड किसकी का कलर क्या होगा? कि कौन से पिगमेंट की वजह से होगा? सॉरी, रेड किस पिगमेंट की वजह से होगा? लाइकोपीन। लाइकोपीन किस में होता है? टोमेटोज में, राइपेंड टोमेटोज। उसके बाद मैंने ज़ैंथोफिल बोला, ज़ैंथोफिल का कलर येलो। नो येलो ब्राउन में, येलो। कौन सा फ्रूट या कुछ वेजिटेबल, कुछ भी बता दो। मैम ये कद्दू या कदीमा कुछ होता है उसमें, आई थिंक। पपाया। ठीक है, पपाया। देखो, पपाया रेड कलर का भी होता है, देखा है आप लोगों ने? यस मैम। रेड वाला पपाया देखा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। ठीक है, लेडी बर्ड कुछ वैरायटी करके है उसका, बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, तो लाइकोपीन जो है टोमेटो के अलावा उसमें भी होता है, चेरी होता है, बहुत सारे फ्रूट्स आप लोग रिकॉल करो। ठीक है, येलो जो है किस में बोले आप लोग? पपाया। और बताओ, कैप्सिकम, मेज रेड वाला भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, सबके एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो खुद से, जो खाते हो देखो। ठीक है, तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है, जस्ट लाइक ल्यूकोप्लास्ट, इट विल कन्वर्ट टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, these chromoplasts it will convert to chloroplast. एक एग्जांपल देखे हो जहां की क्रोमोप्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बता सकते हो? वही है ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल कैरेट जो होता है ऑरेंज कलर होता है। कभी देखे हो उसका टिप पोर्शन जो है, टिप ऐसे तो बेस कहेंगे उसको, रूट है तो टिप तो जो पतला वाला पोर्शन होगा, और ऊपर जो चौड़ा वाला पोर्शन उसको बेस होता है। लेकिन ऐसे ऊपर नीचे वर्टिकली जो होता है अलाइनमेंट, उसकी वजह से उसको लोग टिप कहते हैं। कभी ग्रीन कलर का देखे हो? यस मैम, कुछ एरिया तक नीचे तक ग्रीन हो जाता है। हाँ, कुछ सर्टेन एरिया, ज्यादा नहीं, 1-2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, या पर्पल कलर का भी गाजर आता है जिसमें एंथोसाइनिन प्रेजेंट होता है। तो ये जो ग्रीन होने की वजह यही है कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है टू क्लोरोप्लास्ट। जब वो कन्वर्ट हो रहा है डिफरेंट फॉर्म में, तो ऑब्वियस है जो उसमें पिगमेंट प्रेजेंट हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है फिर वो क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ टोमेटो, टमाटर इनिशियली तो हरा होता है ना, व्हेन रॉ, जब पक जाता है तो किस कलर का होता है? पकने पर रेड कलर हो जाता है। हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और ऑटम में भी आपने लीव्स का कलर देखा है? येलो। पता
जब Yellow. ऑटम, हाँ हाँ, येलो रेड इस टाइप का कलर होता है, बिल्कुल जो न्यू इमर्जिंग होता है बिल्कुल, तो उसका जो लीफ होता है वो उससे क्या होगा, ऑटम में तो क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग स्प्रिंग जब जब नया आता है, कभी कभी रेडिश टाइप का लीफ आता है और वो बड़ा होता है तो ग्रीन होता है, ठीक है। स्प्रिंग में जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट में होगा और ऑटम में वाइस वर्सा, ठीक है। Yes, ma'am. एंड लास्टली द मेन थिंग इज द Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है प्लांट के लिए, एंड इन 1883 इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, किसने कब खोजा, कब कैसे बताया कि ये चीज है। एंड्रियास सिम्पर इन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट लुक्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, दीजिए, ठीक है। दिस क्लोरोप्लास्ट रिजेंबल्स साइनोबैक्टीरिया। हम लोग स्लो बहुत हो रहे हैं, थोड़ा फास्ट तुम लोग बीच बीच में ना रिस्पॉन्स जल्दी दिया करो, मैं पूछती हूँ ma'am. कुछ। हाँ, स्लो हो जाते हो फिर सिलेबस बहुत मुश्किल होगा और ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो इट रिजेंबल्स साइनोबैक्टीरिया। देन 1905 में रशियन बायोलॉजिस्ट कॉन्स्टेंटिन मोरेस्कोस्की, he discovered this organelle, ठीक है। रिगार्डिंग इट्स स्ट्रक्चर, ये भी इसका शेप जो है स्फेरिकल होता है, एलिप्टिकल होता है, एलिप्सॉइडल, डिफरेंट शेप्स होता है, ठीक है। और लेंथ थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है, लगभग 19-20, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 4 to 6 माइक्रॉन्स एंड थिकनेस इज 1 to, लेंथ है एंड देन थिकनेस इज 1 to 6 माइक्रॉन्स, ठीक है। Again, this is a double membrane structure. It has an outer membrane and an inner membrane. ठीक है। अगर हम उसको ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो ये इस टाइप का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर सर्टेन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। एक जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, इट इज अगेन डबल membraneed. Each one is known as granum. Plural is grana. Okay. Plural is grana. And when this granum is piled one over the other, this together is known as thylakoid. Two grana, they are interconnected with each other at certain places. Again, this is double membrane, double layered. Space inside is known as lumen. Space inside the granum is known as lumen. This one is lumen. तो डार्क फिल मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये भी ये जो दो ग्रानम को इसमें भी ल्यूमेन होगा, ठीक है। सो दिस वन जो है
This is red membrane. Yes, stroma lamella. ठीक है. So this जो भी मेम्ब्रेन है, इट इज रिच इन लिपोप्रोटीन, या ग्राना का या मेम्ब्रेन का जो भी है, इसका मेम्ब्रेन इट इज रिच इन लिपोप्रोटीन. आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है. और ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो स्पेस है, इट इज 300 एंगस्ट्रॉम थिक. And each membrane, it is 50 angstrom thick. Okay? Yes, ma'am. Space, dot 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 जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, this hydrophilic matrix, this is known as stroma. Okay, just like mitochondria, it also contains some circular DNA, 70S type, mitochondria की तरह ही. ठीक है. And this is responsible for protein synthesis. Sorry, क्या मैंने हो सर्कुलर डीएनए बोला ना? नहीं, Yes, क्या बोला? it is responsible for protein synthesis. सॉरी, मैंने कंफ्यूज. मैंने सर्कुलर डीएनए बोला ना, इट कंटेन्स सम सर्कुलर डीएनए. तो अगेन इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल. Yes, ma'am. देन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही यहाँ पे कुछ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. सो प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा यहाँ पर. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए. और दोनों में स्मॉल अमाउंट ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दोनों जगह होता है. ठीक है. And most important function of this chloroplast, it is protein synthesis. इसको तो बताने की जरूरत नहीं है. फोटोसिंथेसिस, इसमें लाइट रिएक्शन है. लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्राना. डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा. ठीक है. फोटोसिंथेसिस हम लोग जब डिटेल में पढ़ लेंगे ना इस चैप्टर को, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, तो इसके जो फंक्शन है आप लोग डिटेल में अच्छे से लिख लोगे. ठीक है. अभी तो शॉर्ट में बता दे रहे हैं ऐसे, लेकिन इसका डिटेल बताना क्या होता है जब चैप्टर पूरा फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन हो जाएगा. तो थोड़ा सा इलैबोरेट अगर एक्सटर्नल होता है, बाहर से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन अगर आता है तो फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल. ठीक है. क्लियर अप टू हियर? और कर लेते हैं. Golgi bodies, also known as dictyosomes. लिख लोगे डिक्टोसोम्स. डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट के नाम पे इस ऑर्गेनेल का नाम है. यस.
In year 1898. Okay. Then it consists 3 to 6 membranous sac-like structures. This type of structures, which has swollen end. ठीक है? तीन से छह होंगे ऐसे, ठीक है? और फिर अगेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें भी ल्यूमेन है, यहाँ ल्यूमेन है ये वाला, 3 से 6 होंगे ये जो मैंने सिर्फ 2 ड्रॉ किए हैं, ठीक है? 3 to 6 flattened membranous और each one it is known as cisterna, plural and singular and plural will be cisternae. CISTERNAE. 3 to 6 होता है cisternae present Golgi bodies में, ठीक है? And at the end of each cisterna it has a swollen end. थोड़ा सा मैंने मोटा बनाया है comparatively, यहाँ इधर सेंटर में पतला होगा और यहाँ थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है? और ये जो 2 सिस्टर्ना है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, इट इज 10 नैनोमीटर्स अपार्ट. 2 सिस्टर्ना के बीच में जो स्पेस है, इट इज 10 नैनोमीटर अपार्ट. ठीक है? और ये दोनों लिंक कैसे होता है? ये जो दोनों है cisterna, these two they are linked by certain intercisternal elements. Intercisternal elements, these are cross links, proteins के बने हैं, ठीक है? And these intercisternal elements, which are protein cross links, they hold 2 cisterna together. ओके? और मैंने कहा कि ये है the ends are swollen. तो ये swollen क्या होता है? जब प्रोटीन हम देखेंगे फंक्शन जो है ग्लाइकोसाइलेशन होता है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, तो ये यहाँ पर जाके स्टोर होकर के क्या होता है, ये यहाँ से कट हो जाता है इन द एंड स्मॉल वेसिकल, और वहां पर जहाँ डिफिकेशन होना होता है, ठीक है? तो थोड़ा सा आगे बताती हूँ इसमें 2 मिनट में. स्ट्रक्चर बॉडीज, पोलराइज स्ट्रक्चर्स मीन्स क्या कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस कर रहा है उसको ट्रांस एंड कहेंगे, और दूसरा एंड जो कि सेंटर की तरफ फेस हो रहा है उसको सिस एंड, मतलब न्यूक्लियस की तरफ जो होगा वो सिस हो जाएगा, ठीक है? हेलो, यस मैम. हेलो, हाँ, न्यूक्लियस की तरफ जो प्रेजेंट होता है, जनरली सेंटर में होता है न्यूक्लियस, तो सेंटर की तरफ जो फेस करता है वो सिस एंड होगा, और जो बाहर की तरफ यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वो ट्रांस एंड होगा, ठीक है? तो इसका मेन फंक्शन, रूट आप लोग देखे हो ना, रूट के बारे में जानते हो, उसका जो रूट टिप होता है, रूट टिप जो होता है सर्टेन म्यूसिलेजिनस टाइप का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है? वो यही गोल्जी बॉडीज ही सेक्रेट करता है. These Golgi bodies they secrete some mucilaginous substances in the root. फंक्शन पता है क्या है कि easily root can penetrate the hard soil because वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है? Then it also helps in the formation of
cell wall. ठीक है? Yes, ma'am. अब मैं बता रही थी ग्लाइकोसाइलेशन की बात। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है? जो प्रोटीन्स बनते हैं राइबोसोम्स में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनता है जो प्रोटीन, ठीक है, जो पॉलीसोम्स मोनोसोम्स कन्वर्ट होता है पॉलीसोम्स में, तो वो जो पॉलीसोम्स हैं, ठीक है, वो एंटर करेगा सिस एंड से, ठीक है, इधर से मैं जो ड्रॉ की हूँ अभी एरो डालनी, ठीक है, इधर से एंटर करेगा जिस मैंने डार्क कर रखा है, इधर से एंटर करेगा, इसके ल्यूमेन में जाएगा, यहाँ ल्यूमेन जो मैं अभी शो कर रही हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ल्यूमेन में जाएगा और यहाँ पर इसका मॉडिफिकेशन होगा। जो प्रोटीन्स हैं इट विल बाइंड विद सम शुगर्स इन द ल्यूमेन, ठीक है, और ये इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ऐसे तो ग्लाइकोसाइलेशन समटाइम्स इट ऑकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होता है और जब ये प्रोटीन्स मॉडिफाई हो जाते हैं of small vesicles, these are budded off from this, ठीक है, and translocated wherever this is required. हेलो Yes, ma'am. हेलो, कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। बॉडी बॉडीज का फंक्शन समझ गए? फंक्शन है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन बता दो बॉडीज का। पैकेजिंग मटेरियल के रूप में काम आता है। पैकेजिंग मटेरियल को थोड़ा बताओ। Yes, ma'am. किस चीज को पैकेज करता है? ये ठीक है, मैंने तो इसको अच्छे से बता दिया पैकेजिंग मटेरियल। Yes, ma'am. हाँ बताओ, पैकेजिंग मटेरियल किसको पैकेज करता है? मेनली मैम पैकेज करता है जो कि वो कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो या कोई यूजफुल प्रोडक्ट हो, वो उसको सेल के अंदर भी करता है, आउटसाइड भी करता है मैम। मेन फंक्शन एनिमल्स में है ये, ठीक है। प्लांट का यहाँ पर मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट जो है मैंने बताया, ग्लाइकोप्रोटीन। यस, पैकेजिंग कह सकते हो इसको, ठीक है। हम ज्यादा सुटेबल टर्म है ग्लाइकोसाइलेशन, जो प्रोटीन्स बन रहा है उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तुम लोग एनिमल्स में ज्यादा कंफ्यूज मत करना भाई, क्योंकि स्कूल में जो भी पढ़े हो फंक्शन दोनों का साथ साथ पढ़ते गए हो, ठीक है। तो ये चीज है। और क्या करता है? Pragmoplast formation. Formation of the pragmoplast cell plate during plant cell division. Root. Ma'am, lubrication of root tip by mucilage secretion. ओके, चलो ठीक है। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, Ma'am, roll number
3 मैम. Okay. 4, 5, 6, 7, 9. Present, ma'am. 9 present here. Yes, ma'am. Nine present है क्या? Yes, ma'am. 10,